السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ سوال: جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: قرآن میں آیات تسبیح 100 ہیں۔ سوال: شیخ الاسلام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شیخ الاسلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: پہلا اسلامی پرچم جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کیا، اس کا رنگ کیا تھا؟ جواب: پہلا اسلامی پرچم جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کیا، اس کا رنگ سفید تھا۔ سوال: عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی سے ایک بہت ہی مشہور چیز بناتے ہیں، نام بتائیں۔ جواب: عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی سے کوکو بناتے ہیں۔ سوال: کون سے صحابی پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ جواب: حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ پہلے جنت کا پانی پئیں گے۔ سوال: زبور کب نازل ہوئی؟ جواب: زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔
سوال: خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: خیرات کا حکم قرآن مجید میں 150 بار آیا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب: روزے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب: فرعون محرم کے 10ویں دن غرق ہوا تھا۔ سوال: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی تھی اس کے سربراہ کا نام بتائیں۔ جواب: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی تھی اس کے سربراہ کا نام حسین بن نمیر ہے۔ سوال: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب: الفارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ سوال: مصر کی فتح کا سہرا کس کے سر ہے؟ جواب: مصر کی فتح کا سہرا عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے وہ احمد ہے۔ سوال: حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب: حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ سوال: پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔
सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमान में मुस्तनद हैसियत रखती है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमान में मुस्तनद हैसियत रखती है। सवाल: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा किस ज़बान में किया था? जवाब: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया था। सवाल: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा ये फरमान कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा ये फरमान कुरान मजीद की सूरत निसा में है। सवाल: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसके मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया? जवाब: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया। सवाल: किस पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं? जवाब: जबल खंदमा पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। सवाल: इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी कौन हैं? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है? जवाब: लौंग है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है। सवाल: औरत के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर माह बदलता है? जवाब: औरत के जिस्म का वो हिस्सा आईब्रो है जो हर माह बदलता है। सवाल: क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था जिसके मायने अब्दुल्ला है। सवाल: फ़र्ज नमाजों के अलावा कौन सी नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है?
जवाब, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा तहज्जुद की नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल, किस वाइस शख्सियत को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइस शख्सियत हैं जिनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया। सवाल, कुरान का अंग्रेज़ी में तर्जुमा कब हुआ? जवाब, कुरान का अंग्रेज़ी में तर्जुमा 1951 में हुआ। सवाल, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला? जवाब, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला। सवाल, खवारिज कौन थे? जवाब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज के अक्खड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर करने के फैसले से बरहम होकर अलहदा हो गए। सवाल, दुआ मांगने के बाद चेहरे पर हाथ फेरने से क्या होता है? जवाब, कुछ लोगों का कहना है दुआ मांगने के बाद हाथों को चेहरे पर नहीं फेरना चाहिए। इस बारे में सनद तिरमिज़ी की एक हदीस में आता है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो अपने चेहरा मुबारक पर जब तक हाथ ना फेर लेते तो हाथ नीचे नहीं करते। ये रवायत अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं जिसकी वजह से यह अमल काबिल कबूल है और ये मसला इस नौयत का नहीं है कि इस अमल के लिए किसी मजबूत या मुस्तनद हदीस की ज़रूरत है। लिहाजा अगर ये अमल करता है तो इसको बिद्दत नहीं कहा जाए क्योंकि ये गैर साबित शुदा अमल नहीं। वल्लाह ताला आलम। सवाल, कौन सी कौम पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था? जवाब, कौम आद पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था। सवाल, कौन सी छोटी सूरत है जिसमें अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है? जवाब, सूरह फील में अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है। सवाल, किस जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी?
जवाब: सहज जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? जवाब: बर्फ में से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती। सवाल: कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब: हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल: फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया? जवाब: फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बदबख्त हामान ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया। सवाल: लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो किस दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं? जवाब: लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो जुमेरात के दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं। सवाल: किस साहबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया? जवाब: हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया। सवाल: किस नबी की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।